ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 7 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਹੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕੋਠੀ ਚੋਂ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਡਨ UK ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ UK ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਰੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬੁਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਬਾਂਦਰਾ ਕੋਠੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਭਾਇੰਦਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੱਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਰਾਏਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੌਜ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
अगर सानू सवाल जवाब भेज देणगे तो असीं तुहाडे नाल जरूर जिक्र करांगे। हुण यूके वाले अलर्ट रहन, क्योंकि बाबा जी हो सकता है कि इस हफ्ते संडे नूं प्रोग्राम कर देण। अगर कोई भैन भरा सानू यूके तो सुन रहा है तो वह जरूर साडे नाल सवाल जवाब शेयर करे, ताकि असी भी संगत दे नाल वध तो वध सवाल जवाब शेयर कर सकीए। हजूर जी ने कल जो मुंबई दे विच नामदान दिता तो उस तो पहले आप जी दर्शन भी पैदल दिते शाम नूं ਐਤਵਾਰ, ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਰਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਂਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, 6-7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਰਫ ਆ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੌਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਓਰਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੂਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜਟਿਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਟਿਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਟਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਖਾ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅਗਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ वो तो समझ लो पार हो ही गया। डर लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? हजूर जी कहते जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, कहते हमने उसको यूज करके अपना जजमेंट करना है ताकि हम गलत ना करें। हजूर जी कहते जैसे जैसे हमारे को एक्सपीरियंस होगा, कहते हम बड़ों से भी सीखेंगे, कहते हमारी लाइफ कहते बेटर होती जाएगी। हजूर जी कहते हमने सीखना है और कहते हम जैसे ही प्रैक्टिकल करेंगे कहते वैसे वैसे ठीक होता जाएगा। वो डॉक्टर सी तो वो पूछने लगे, उसने कुछ बोला, हजूर जी कहते कहते पेशेंट को तो डॉक्टर सिर्फ इलाज करते हैं, लेकिन कहते ठीक तो बेटा मालिक ही करता है। तो फिर हजूर ने मतलब कि उनकी बात का जवाब ऐसे दिया था। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी जब हम किसी जीव को खो देते हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि मालिक हमारे लिए कोई और अच्छा सा जीव भेजने वाला है? हजूर जी कहते हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा, हजूर जी कहते हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कहते हमने तो जो हो गया उससे कहते सीखना है। हजूर जी कहते हम अगर गलत कदम उठाएंगे तो कहते हमें वैसा ही नतीजा मिलेगा, कहते अच्छे कर्म करेंगे तो कहते वही नतीजा मिलेगा। कहते जो किस्मत में लिखा है मालिक ने वो कहते जन्म से पहले ही लिख दिया है, हजूर जी कहते वही हमारे को मिलता है। कहते हम क्या करते हैं, हम इन्हीं चीज़ों को कहते मांगना शुरू कर देते हैं। कहते ये चीज़ें जो हमारे को दूर कर रही हैं मालिक से और जो हमारे को दुख दे रही हैं, अगर कहते हम इनको दोबारा मांगेंगे तो कहते फिर हम दोबारा दुख में ही फंसे रहेंगे। हजूर जी कहते इस दुनिया में कहीं पे भी सुख नहीं है। कहते हम दुनियावी चीज़ें मांगते हैं तो कहते ये हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। फिर हजूर जी कहते हमने तो कुल मालिक से कुल मालिक को
मांगना है। कहता हजूर जी अच्छे कर्म करने से क्या बुरे कर्म कट जाते हैं? हजूर जी कहते आपको ये बात किसने बोली? हजूर जी कहते जो जन्म हम करते, जो कर्म हम करते हैं, कहते वो हमारे को ठीक नतीजे देते हैं, और जो बुरे करते हैं हमें वो उसका बुरा नतीजा खत्म होता है, मिलता है। हजूर जी कहते जब कर्म जो खत्म होते हैं वो शब्द की ताकत के साथ होती है। कहते जो शब्द है वो कर्मों को कहते खत्म कर सकता है। और कहते शब्द से कैसे मिल सकते हैं? कहते जब हम बताए हुए भेद पर चलेंगे, कहते फिर हमारे को उस शब्द की प्राप्ति हो सकती है। हजूर जी कहते कहते हमने बाबा जी के कहते अच्छे बच्चे बनना है। कहते उससे कोई भी बड़ी इस दुनिया में खुशी नहीं है। फिर वही वीर कहने लगा हजूर जी कोल्हापुर आना, जहाँ पे नया डेरा बन रहा है। हजूर जी कहते कहते हुक्म करो, जरूर आएंगे मैं और बाबा जी। फिर उसने बोला हजूर जी, कहता कोल्हापुर आना। हजूर जी कहते फिर यहाँ पे जो बाकी बैठे बाकियों को छोड़ दे। नहीं नहीं कहता हजूर जी, नहीं नहीं कहता सभी को मतलब कि करो। तो हजूर जी कहते कहते मैं तो फटाफट कोल्हापुर पहुंच जाऊंगा। तो कहते तू तो अभी यहीं पे रह जाएगा। तो जब हजूर ने इतनी बात बोली, बाबा जी भी थोड़ी सी स्माइल कर पड़े, और हजूर जी ने भी स्माइल कर दी। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी जब हम कोई कर्म करते हैं तो पिछले कर्म जो होते हैं तो वो क्या हमारे को भुगतने पड़ते हैं? हुजूर जी कहते जो हम बोएंगे कहते वही हमारे को मिलेगा। हजूर जी कहते हमें नहीं पता कि हमने कौन सा कर्म पिछला है, कौन सा कर्म हमने नया किया है। हजूर जी कहते हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं, कहते हम अपने आप को दुनिया में एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कहते हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। कहते सबके कर्म अलग अलग होते हैं। हजूर जी कहते अगर हम रात को कई बार बहुत ज्यादा चिंता होती है तो कहते उसके कई बार हम देखते हैं हमारे को नींद नहीं आती, और कहते हमारे को परेशानी होती है। इसलिए हजूर जी कहते अगर हमने चैन को सोना है तो हजूर जी कहते हमने अच्छे कर्म करें ताकि हमें बुरे कर्मों का नतीजा ना भुगतना पड़े। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी माफी देना। हजूर जी कहते कहते पीछे से जो हमने कर्म किए हैं कहते उससे हमने सीखना है। कहते जो हम कर्म पीछे करते हैं तो कहते वो कर्म बार बार हमारे को कहते नीचे की अवस्था में लेकर आ जाते हैं। हजूर जी कहते मालिक के घर में तो माफी ही माफी है। कहते हमने तो अपने आप को माफ करना है, और कहते अपनी गलतियों से सीखना है। हजूर जी कहते हमने अपनी गलतियों से इस कदर सीखना है ताकि हम दोबारा ऐसी गलती ना कर सके। कहते बाबा जी अक्सर ही अपने सत्संग में कहते होते हैं कि मालिक ने हमारे को जो कुछ देना था दे दिया है। कहते हमने खाना भी बना दिया है, खाना हमारे सामने भी पड़ा है। कहते अब तो सिर्फ चबाने की देर है। और हजूर जी कहते हमने क्या करना है? हजूर जी कहते हमने तो सिर्फ शांति के साथ बैठना है, ना ही कोई यज्ञ करना है, ना ही किसी तीर्थ स्थान पे जाना है। हजूर जी कहते बस हमने 2 घंटे कहते चुप करके बैठना बैठना है। फिर हजूर जी कहते कहते शुरुआत अगर हमने ढंग से कर ली, हजूर जी कहते हम बैठना शुरू हो गए 2 घंटे, तो कहते हमारा भजन सिमरन भी बनना शुरू हो जाएगा। फिर एक बहन ने पूछा कि हजूर जी कैसे हो? हजूर जी आगे से कहने लगे कहते कैसा लग रहा हूँ? अगो भैन कहती कहते ठीक लग रहे हो। हजूर जी कहते आप ठीक हो? कहती हाँ जी। फिर कहते हजूर जी दुनिया के लोग कभी कुछ कहते हैं ऐसा वो ऐसा करते बुरा करते हैं। हजूर जी कहते दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। अगर कहते अगर ऐसे ही बात होती तो कहते लोग भी सभी एक दूसरे का बुरा ही करते होते। हजूर जी कहते जो हम करते हैं कहते हमें तो कहते भुगतना पड़ेगा। हजूर जी कहते हमने जहाँ पे मालिक ने रखा है कहते हमने वहां सहज पे रहना है। कहते अगर मालिक ने हमारे को दुखों में रखा है तो कहते सहने के लिए उसने मालिक ने हमारे अंदर शक्ति भी रखी है। हजूर जी कहते हमने कहते कर्मों से बचने की कहते कोशिश करनी है कि जो कर्म हमारे पे बोझ ना बने। तो बहन कहती हजूर जी कर्मों से कैसे कब तक बचना है? तो हजूर जी कहते जब तक हम सृष्टि में हैं। और दूसरी हजूर जी कहते हमने कभी भी किसी की कहते परख नहीं करनी। कहती हजूर जी मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि आप अनपढ़ को नामदान क्यों नहीं देते? हजूर जी कहते ये रिश्ता प्यार का है। कहते इसमें सिर्फ इतना इस देखा जाता है कि जो नामदा लेने आया है क्या वो सत्संग को समझ सकता है, उनके असूलों पे चल सकता है,
कि जो वो सत्संग सुन रहा है क्या उसको वो समझ आ रही है। कहते हुजूर जी फिर जो मतलब कि पढ़े लिखे नहीं है उसको नामदान नहीं मिलेगा। हुजूर जी कहते ऐसी बात नहीं है, कहते जो संत मत को सोझी जिसको मतलब कि हो कहते उसको ही नामदान लेना बेहतर है। हुजूर जी कहते नामदान का कहते एजुकेशन से लेना देना कुछ भी नहीं है। फिर एक भाई कहने लगा, कहता हुजूर जी मेरे मम्मी की कहते हेल्थ ठीक नहीं रहती, कहते वो कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपना चेकअप भी नहीं करवा रहे। कहते हम उनको बड़ी बारी बोल चुके हैं कि आप चेकअप करवा लो। हुजूर जी कहते हमने जो कुछ भी अपने माता जी को कहना है कहते प्रेम प्यार से कहना है। कहते हमने घर का माहौल ऐसा बनाना है कि वो डरे ना। हुजूर जी कहते अगर माहौल बढ़िया होगा तो उनको बेहतर फील होगा तो उनको ये भी बोलना है कि हमने टेस्ट जरूर करवाने हैं ताकि हमें प्रॉब्लम पता चल सके। फिर वही भाई कहने लगा हुजूर जी हम जब 10-12 घंटे जॉब करते हैं तो ऐसे कई बार कहते 8 घंटे की मैं चाहता हूँ नौकरी हो, तो हुजूर जी हम 10-12 घंटे काम क्यों करें। हुजूर जी कहते नौकरी 10-12 घंटे की पाबंदी नहीं है। हुजूर जी कहते शुरुआत में कहते हमें जोर लगाना पड़ता है। कहते फिर जब सारा कुछ जल्दी हो जाता है हम सहज की अवस्था में आते हैं। कहते फिर हम दूसरों के कहते हम उस मुकाम पे चले जाते हैं कहते जब जहाँ पे कहते फिर हमारे को मेहनत कहते कम करनी पड़ती है। कहते आजकल हम सोचते हैं कहते हम अपने असूल लेके बैठ जाते हैं। हुजूर जी कहते मेहनत करनी पड़ती है फिर जाके बुनियाद बनती है। हुजूर जी कहते इसकी शुरुआत कहते धीरे धीरे होगी। कहते हम क्या करते हैं हम चॉइस लेकर कहते बैठ जाते हैं। हुजूर जी कहते आपके पास क्या चॉइस है। कहते अगर आपके पास चॉइस है तो बेहतर करे। हुजूर जी कहते अगर यही बात हम अपने ऊपर लागू करें हमारे पे क्षमता आ जाए हम भी किसी को नौकरी दे सकते हैं तो हम अपने एम्प्लॉय को से क्या चाहते हैं कि वो भी 12-12 घंटे काम करे और हम कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े। हुजूर जी कहते जब हमारा वक्त आता है तो हम इन चीजों को कहते भूल जाते हैं। कहते हम अपने ऊपर असूलों को लागू नहीं करते पर दूसरे के ऊपर हम वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा हम अपने लिए नहीं चाहते। फिर वो भाई कहने लगा हुजूर जी मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप से पहले खुद चला जाऊं, मैं उनको मतलब कि मेरे सामने मेरे माँ बाप ना जाए। हुजूर जी कहते हमने कुल मालिक से कुछ भी ऐसी चीजें नहीं मांगनी। हुजूर जी कहते अगर आप ऐसी चीजें मांगोगे तो माँ बाप को दुख ज्यादा होगा। कहता हुजूर जी मैं उनको उनको दुखी नहीं दे सकता। हुजूर जी कहते आपके जाने से सबसे ज्यादा दुख कहते माँ बाप को होगा। हुजूर जी कहते हमने मालिक से कभी भी ऐसा कुछ नहीं मांगना। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी कई बार हमें कोई दुख देता है तो हमें कैसा उसके आगे रिएक्ट करना चाहिए। हुजूर जी कहते सृष्टि में किसी ने भी कभी किसी को नहीं बख्शा। कहते हमने तो कहते अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हुजूर जी कहते हमने किसी पे भी उंगली नहीं उठानी। कहते अगर कोई हमारे को दुख दे रहा है तो कहते हम अपना अलग रास्ता बना ले। तो वो बहन कहने लगी हुजूर जी जैसे घर में नॉन वेज बनाना पड़ता है लड़ाई होती है वो माहौल नहीं है। हुजूर जी कहते हमने परिवार में कहते किसी भी तरह के मतलब कि माहौल खराब नहीं करना। कहते अगर वो नॉन वेज बनाने को कहते हैं कहते आप बना दो लेकिन हुजूर जी कहते आपने खाना बिल्कुल भी नहीं है। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी उसने अपने पापा की बात बताई। ये क्वेश्चन उसने थोड़ा सा भाई ने इंग्लिश में किया था। कहते मेरे पिताजी को पापा पिताजी को बाबा जी कहते लेने आए थे। कहते लास्ट टाइम पे कहते वो घर पे थे उन्होंने बाबा जी की फोटो मंगाई और वो उन्होंने बाबा जी से फोटो से बात करी। कहते फिर वो कहने लगे थोड़ी देर बाद कहते मेरे को बाबा जी लेने आ गए हैं कहते मैं जा रहा हूँ। कहते बाबा जी लेने आते हैं कहते मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरे पापा आपके पास सेव हैं। बाबा फिर आगे से हुजूर जी कहते कहते हमने कहते अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है। कहते हम संडे कहते हमारे यहाँ पे कहते सत्संग होता है। हुजूर जी कहते जब तक हमें एहसास नहीं होगा कहते हम कभी भी इन चीजों को महसूस नहीं कर सकते। हुजूर जी कहते जो हमारा रिश्ता है कहते ये दुनियावी रिश्ता है। कहते हुजूर जी कहते कहते मालिक तो कहते हर किसी की संभाल करता है। कहते शब्द तो हर किसी की संभाल करता है। हुजूर जी कहते जो चला गया कहते सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तभी होती है कहते अगर हम उसके कहने पे चले हम उसके असूलों पे चले।
हजूर जी कहते दुनियावी रिश्ता तो हमारा 40-50 साल का होता है। कहते मालिक से तो हमारा रिश्ता कहते जन्मों जन्मों का है। हजूर जी कहते मालिक तो सब जानता है और कहते मालिक तो सभी की संभाल करता है। फिर एक माता जी कहने लगे, कहते मेरे को अच्छे पति दिए हैं, अच्छा बेटा है दिया है। कहते हजूर जी बस मेरे को अंत समय लेने जरूर आना। हजूर जी कहते मालिक ने जब जन्म दिया था, कहते वो उसने तभी वक्त लिख दिया था कि हमने कब जाना है। हजूर जी कहते हमने प्यार का कहते एहसास करना है और कहते हमने अपने प्यार को कहते मालिक के साथ जोड़ना है। कहते अगर हम अपने मालिक के साथ जोड़ेंगे तो कहते तभी वो हमारा मकसद पूरा होगा। फिर कहते जब हम मालिक के साथ जोड़ेंगे हजूर जी कहते तब सारा कुछ ठीक हो जाएगा। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी ये सवाल पूरा सुनने वाला है, जरूर इसको ध्यान से सुने कि हजूर जी संत मत में जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मालिक एक तरफ कहते हैं कि हम मालिक की तरफ छोड़ना है, छोड़ दे मतलब कि सरेंडर करना है। कहता है यार दूसरी तरफ ये होता है कि हमें दुनियावी चीजें भी चाहिए होती हैं, हमें कुछ मतलब कि चाहिए होता है, कोई परेशानी भी होती है। तो कहते हैं हम मालिक के आगे अरदास करते हैं। तो क्या हजूर जी हमें मालिक के आगे अरदास करनी चाहिए? हजूर जी कहने लगे, कहते हमारे को मालिक के आगे अरदास जरूर करनी चाहिए, लेकिन कहते वो जो हमारे लिए करता है हमें उसे एक्सेप्ट करना है। हजूर जी कहते ये अवस्था की बात है कि हम पूर्ण समर्पण करते हैं। कहते ये बहुत बड़ी अवस्था होती है। हजूर जी कहते जब तक हमारे को एहसास नहीं होता कि हम किस अवस्था में हैं, हजूर जो मालिक देता है हम किंतु परंतु ना करें, हजूर जी कहते तब तक समर्पण नहीं हो सकता। हजूर जी कहते वो हमारे को सुख दे, वो हमारे को दुख दे, कहते तभी वो समर्पण होता है कि हम उसके बहाने में पहुंचे। तो हजूर जी वो कहता है हजूर जी मेरे को ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहता हूँ जहां पे सिर्फ पूर्ण समर्पण हो। हजूर जी कहते उस अवस्था तक पहुंचने का तौर तरीका कहते पहले ही बता दिया गया है। हजूर जी कहते वो सिर्फ भजन सिमरन से ही तरीका पूरा होगा। कहते जैसे जैसे कहते हमारे को एहसास होना शुरू होगा, हजूर जी कहते हम अपने आप मालिक के सपुर्द होते जाएंगे। फिर वो वीर कहता हजूर जी जैसे सिमरन है, दर्शन है, शब्द है, तो हम कैसे मतलब कि संत मत में इनका बैलेंस रख सकते हैं? क्यों क्या हमारे को ध्यान पे फोर्स करना चाहिए अपने आप को? हजूर जी कहते ध्यान हमारे कहते बस की बात नहीं है। हजूर जी कहते हमने सिर्फ बैठ सकते हैं, कहते हम मुर्शद का जो दिया हुआ नाम उसको जप सकते हैं, लेकिन कहते ध्यान को हम फोर्स नहीं कर सकते। हजूर जी कहते जैसे जैसे हम सिमरन करेंगे, हजूर जी कहते ध्यान अपने आप आएगा। कहते जिस हमने मुर्शद से नामदा लिया है, कहते उसका हमारे को ध्यान जरूर आएगा। कहता हजूर जी जैसे बाबा जी बात करते थे, बाबा जी बात करते हैं तो वो बेटा बेटा करते हैं, तो हजूर जी आप भी बेटा बोलो। हजूर जी कहते मैं बेटा नहीं बोलूंगा, कहते मैं अभी बूढ़ा थोड़ी हूँ, मैं तो अभी कहता जवान हूँ। जब हजूर ने कहा कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ जवान हूँ, सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी जब कई बार किसी को बुरा लगता है, कुछ हम कहते हैं, तो हजूर जी हमें क्या करना चाहिए? हजूर जी कहते जो हमारे अंदर है कहते वही बाहर हमारे को लगना शुरू हो जाता है। हजूर जी कहते हमने अपनी तरफ से ठीक करना है ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। कहते हजूर जी आप और बाबा जी कैसे हो? बाबा कहते हजूर जी कहते कहते बाबा जी कहते फर्स्ट क्लास है। बाबा जी भी थोड़ी स्माइल करनी शुरू हो गए। फिर कहते हजूर जी मैं 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। तो वो उस बहन ने ओगन मेरे बाप जी जो कबीर साहब का शब्द है वो गाया था। फिर उसके बाद हजूर जी ने कहा कि आपकी बहुत अच्छी आवाज है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि हजूर जी आपने बहुत कुछ दिया है, नामदान भी दिया है। वो भाई रोया और कुछ ना कुछ कहने लगा हजूर को। हजूर जी कहने लगे, कहते हमने बेनती है अपनी जिंदगी को कहते प्रैक्टिकल रखना है, कहते प्रैक्टिकल जीना है। हजूर जी कहते हमने अपनी ताकतों को देखना है। हजूर जी कहते हमने हमारी अगर आर्थिक अवस्था को भी हमने देखना है, अगर हम उसको निभा सकते हैं तो जरूर करें। हजूर जी कहते हमने अब आपके कहते पापा नहीं है, वो बोला था कि मेरे पापा नहीं है, कहते फिर कहते हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, कहते हमारे को मतलब देखना पड़ेगा।
फिर हजूर जी को वो भाई कहता, हजूर जी मेरे को कहता अच्छी वाइफ देना जो सुशील हो, सुंदर हो। हजूर जी कहते और कुछ चाहिए? जो हजूर जी ने कहा और कुछ चाहिए, संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। हजूर जी कहते अच्छा, सुंदर भी चाहिए, सुशील भी चाहिए। हजूर जी कहते और गुण? कहता हजूर जी बस वो मेरे मम्मी का कहना माने। हजूर जी कहते यानी कि आपको गुणवंती, मतलब कि बीवी चाहिए। जब हजूर ने बोला गुणवंती चाहिए तो संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। बाबा जी भी स्माइल कर पड़े। हजूर जी कहते अगर उसको कैसा चाहिए, पति चाहिए होगा तो फिर आपको आप में क्या देखेगी? हजूर जी कहते वो लड़का कहते हैं हजूर जी उसको तो बस मैं चाहिए। हजूर जी कहते अच्छा, कहते मैं और बाबा जी कहते नया बिजनेस खोल लगे हैं। कहते हजूर जी कहते हम अब लड़कियां ढूंढा करेंगे, शायद मैरिज ब्यूरो मतलब की खोलते हैं। फिर हजूर जी कहने लगे, कहते अगर गुणवंती चाहिए, इसे शादी करनी है, कहते अगर तूने उससे शादी कर ली, कहते तू हमारे को मतलब कि नहीं देखेगा, मेरे और हमारे को यानी मेरे को और बाबा जी को। तो वो भाई आगे से हाँ करने लगा। हजूर जी कहता है इसका मतलब तू मेरे को और बाबा जी को साइड पे कर देगा?" सारे संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। फिर एक बहन ने सवाल किया कि हजूर जी मेरे पति ने ना 13 दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। वो कहते थे कि मैं आपके साथ मतलब बहंदर चलूंगा और नामदान भी लूंगा। कहते लेकिन हजूर जी वो नहीं आए, मतलब कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया? घर में थोड़ा सा प्रेशर भी था, मैं जॉब करती हूँ। कहती मैं जब जॉब पे गई हुई थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। हजूर जी कहते कभी भी हमने सुसाइड के बारे में नहीं सोचना। हजूर जी कहते ये जो हम कदम उठाते हैं ये कहते हैं मालिक के हुक्म के खिलाफ है। हजूर जी कहते अगर मालिक हमारे को दुख देता है या परेशानी कोई आती है तो कहते साथ में हमारे को ताकत भी देता है ताकि हम इन दुखों को काट सकें। हजूर जी कहते हमने तो अपने माइंड में भी